So democracy features, I have told you, best form of government, you know it well. So which are the features of democracy? First of all, elections, elected representatives, independent judiciary, promote the dignity of its citizens. It is accountable, responsive and legitimate government, and people can criticize the functioning of government. So why it is better than other form of government? Because in other form of government, judiciary is not independent, elections are not held regularly, people can't criticize the functioning of government, other form of government are not accountable, responsive and legitimate. So in this way, we can say democracy is better than its alternatives. Now next is, how can you say democracy is accountable, responsive and legitimate? 5-mark question can be asked in the paper. How can you say democracy is accountable, responsive and legitimate? So you have to explain all. First of all, you will write accountable. Accountable means answerable. Democratic government is answerable to the people. Government has to face people in the next election. So representatives who are elected by people, they work according to the wishes of the people. So government is accountable. Right to Information Act made the government accountable, because by this right, people have full right to know about the functioning of the government. RTI एक ऐसा right है by which people have full right to know about the functioning of the government. So it is accountable form of government. आप ये भी कह सकते हो कि government has to face people in the next election. Representatives have to face people in the next election. So they are answerable. Next is responsive. Democratic form of government is responsive for the decisions taken by it. It takes responsive decisions because it is responsible for those decisions which are taken by it. Next is, it is legitimate because rulers are elected by people through elections. So this make government legitimate. Accountable means answerable, responsive decisions, and government is responsible for the decisions taken by it. And then legitimate क्यों है? Because rulers or representatives, they are elected by people through elections, and elections are held after fixed tenure. So this makes democratic form of government accountable, responsive and legitimate. Next is, इसके बाद आ जाता है आपका economic growth and development in democratic countries is slow. Should we reject democracy for this? Because in dictatorial form of government, this growth is fast, whereas in democratic countries it is slow. Should we reject democracy for this? No. We can't reject democracy for the slow economic growth and development. We can't blame government for this. It is a government, and government can provide only conditions. It depends upon the citizens. Government can provide facilities, depend upon the citizens to avail benefits or not. It is the best form of government. There is no better option than democracy. So there are various other factors which are responsible for the slow economic growth and development. If you want to take full marks in this question, then pay attention towards here. You have to write these points, write in points. So there are various other factors which are responsible for the slow economic growth and development. Now, which are the factors? Write in points. आप इसमें बता दोगे economic priorities adopted by the country, and next growing population and global situation, and then cooperation from other countries. You have to write these points. ये points लिख के आप कहोगे these are the points by which due to these reasons economic growth and development in democratic countries is slow. So economic growth and development slow होने के कारण can we blame democracy? No, we can't blame democracy. It is the best form of government. We can't reject government for this. Government can create only condition, depends upon citizens to avail benefits or not. तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो स्लो है ना, देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. अब वो कौन से फैक्टर्स हैं आपको लर्न होने चाहिए. ग्रोइंग पॉपुलेशन, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री, एंड कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज. कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज. तो लिसन एंड डू लाइक दिस.
कि आपने डेमोक्रेसी को, अगर किसी बच्चे ने कह दिया कि यस वी कैन रिजेक्ट डेमोक्रेसी बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो आपका गलत हो जाएगा। हियर उन्होंने ग्रोथ भी बताई हुई है कि कितनी ग्रोथ चलती है इन डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो लर्न फ्रॉम हियर, ये देखो डिक्टेटोरियल फॉर्म में वो कह रहे हैं 4.42 है, ठीक है, ग्रोथ रेट, वेयर एज इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज 3.95 है। तो अगर आप लर्न कर सकते हो दैट इज गुड। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ग्रोथ रेट इज 3.95, वेयर एज इन डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट इज 4.42, विच इज आप कह सकते हो इकोनॉमिक ग्रोथ इन डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फास्ट, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जल्दी होती है। बट फॉर दिस वी कांट रिजेक्ट डेमोक्रेसी, आपने डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आ गया रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो लर्न इट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड आपने ये परसेंटेज लर्न रखनी है, 1 मार्क में पूछी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। दिस इज द मेजर चैलेंज फेस्ड बाय डेमोक्रेटिक कंट्रीज दीज डेज। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज स्टिल आप कह सकते हो पीपल हैव टू फेस डिस्क्रिमिनेशन, अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है, देयर इज इनइक्वालिटी एंड many people are still poor in democratic countries. Poor are becoming poorer day by day and rich are becoming richer day by day. This is because the wealth of the country is not equally distributed. Wealth of the country is not equally distributed by the government. So rich are becoming richer day by day and poor are becoming poorer day by day. After so many years of independence, still 26% people in India are below poverty line. Whereas in Bangladesh, it 50% of the population, half of the population is below poverty line. तो 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश में पॉवर्टी लाइन का बताओ आप, हाउ मच परसेंट पीपल इन बांग्लादेश आर बिलो पॉवर्टी लाइन, 50%, ठीक है। तो ये लर्न रखना, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन बांग्लादेश इज बिलो पॉवर्टी लाइन। तो दिस इज द मेजर चैलेंज फेस्ड बाय डेमोक्रेटिक कंट्रीज, दिस चैलेंज कैन बी ओवरकम। ये चैलेंज ओवरकम हो सकता है गवर्नमेंट स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द वेल्थ इन प्रॉपर मैनर। तो इस वे से इसको सॉल्व किया जा सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, reduction and inequality is the major challenge faced by democratic countries. In democratic countries still there are inequalities, people are discriminated. Next आप कह सकते हो कि rich are becoming richer day by day and poor are becoming poorer day by day because wealth of the country, wealth is not equally distributed by the government. Still 26% people in India are below poverty line after so many years of independence, and in Bangladesh half of the population is below poverty line. So learn like this and after बाद में लिख देना, this challenge can be overcome if government start distributing its wealth in a proper manner. आपने इस चैलेंज को पहले मेजर चैलेंज बताना है, फिर आपने सारा इसमें लिखना है कि वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कितने परसेंट लोग इंडिया में बिलो पॉवर्टी लाइन है, बांग्लादेश में बताओ, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये प्रॉब्लम है। तो फिर इस वजह से आप बता के फिर कहो कि दिस चैलेंज कैन बी ओवरकम, ये चैलेंज ओवरकम हो सकता है। नेक्स्ट इज अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो अकोमोडेशन दिस फील्ड इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज, हम कहेंगे सक्सेसफुल है बिकॉज इट अकोमोडेटेड डाइवर्सिटी इन अ प्रॉपर मैनर। तो आप बताओगे सबसे पहले इट फॉलोज वेरियस कंडीशंस टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी। अब वो कौन सी कंडीशंस फॉलो करती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी वर्क टुगेदर, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी मिलके काम करते हैं, ठीक है। मेजोरिटी कैन नॉट डोमिनेट माइनॉरिटी, तो मेजोरिटी कैन नॉट डू वट एवर इट वॉन्ट। नो डाउट डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मेजोरिटी, ये रूल तो मेजोरिटी का ही है, बट हियर मेजोरिटी इज नॉट फॉर्म्ड on the basis of caste, religion, language. Everyone can be the part of majority. अब बीजेपी is in majority in India, तो बीजेपी में हर कास्ट, हर रिलीजन के लोग हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी जो बनी है वो सिर्फ हिंदुओं की या एक कास्ट वाले लोगों की बन गई, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में हिंदू, मुस्लिम, सिख हर तरह के लोग हैं। तो हम इसमें ये बात बोलेंगे कि नो डाउट इट इज द रूल ऑफ मेजोरिटी। रूल तो मेजोरिटी का, क्योंकि जो पार्टी मेजोरिटी शो करती है दैट कैन फॉर्म गवर्नमेंट इन इंडिया। तो हम कहेंगे रूल ऑफ मेजोरिटी है इंडिया में, देयर इज रूल ऑफ मेजोरिटी इन इंडिया, बट
दिस मेजोरिटी इज नॉट फॉर्म्ड, यहाँ पे मेजोरिटी का मतलब ये नहीं है कि वो कोई कास्ट या रिलीजन के बेस पे बनी है, नो, दिस मेजोरिटी इज नॉट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, everyone can be the part of majority, हर कोई उस मेजोरिटी का पार्ट बन सकता है. So these are the conditions followed by democratic countries to accommodate diversity. India में diversity है, there in India people of diverse group live and our government has accommodated diversity. That's why we are saying that there is unity in diversity. People of diverse group live together in a peaceful way in India in a same country because our government has accommodated diversity by giving them equal rights. अभी आ गया accommodate diversity. पेपर में मोस्टली कंडीशंस पूछते होते हैं, राइट द कंडीशंस बाय विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकोमोडेट डाइवर्सिटी. तो आपको कंडीशंस याद रखनी है. मेजोरिटी कैन नॉट डोमिनेट माइनॉरिटी, मेजोरिटी कैन नॉट डू वट एवर इट वांट, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी वर्क टुगेदर, गवर्नमेंट कैरी जनरल व्यूज. और साथ में नो डाउट इट इज द गवर्नमेंट ऑफ मेजोरिटी, इट इज द रूल ऑफ मेजोरिटी, बट हियर मेजोरिटी इज नॉट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज. Everyone can be the part of majority. Here we can give example of India. आप इंडिया की एग्जाम्पल दे सकते हो. In India there is diversity. People of diverse group live in India. अगर आपका क्वेश्चन छोटा बनेगा ना, 5 मार्क का नहीं बना, तो you can give example. Here we can give example from India. People of diverse group live in India and they live in a same country in a peaceful way. Because our government has accommodated diversity in a proper way by giving them equal rights. तो इस वे से आप कर सकते हो. Next is dignity and freedom of the citizens. This is the topic. How democracy promote the dignity and freedom of the citizens. तो इसमें आपने बताना है democratic government promote the dignity of its citizens by giving them equal rights. पहले तो आप इस पॉइंट को ऐसे जस्टिफाई करोगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रमोट द डिग्निटी ऑफ इट्स सिटीजंस बाय गिविंग देम इक्वल राइट्स. पहले तो आप ये बताओगे, फिर आप बताओगे अर्लियर, और आप पहले पास्ट का थोड़ा सा बताओगे स्ट्रक्चर के कैसी सोसाइटी थी अर्लियर. आप बताओ कि इन वर्ल्ड पैट्रियार्चल सोसाइटीज वर देयर, वुमेन वर नॉट गिवन राइट्स एंड वुमेन स्ट्रगल्ड अ लॉट. आप थोड़ा सा फ्रांस को दिमाग में लाओ, आपके अपने आप आ जाएगा ध्यान में कि कैसे वुमेन ने स्ट्रगल की ओनली इन फ्रांस फॉर 200 ईयर्स, है ना. तो बाकी कंट्रीज की तो बात ही छोड़ दो. तो आप वैसे ही सोचो, आपने फ्रांस लिखना नहीं है, यहाँ पे सिंपल बताना है कि अर्लियर पैट्रियार्चल सोसाइटीज वर देयर इन द वर्ल्ड. मैं वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही. और साथ में आपने बताना है कि वुमेन स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड वुमेन लॉन्च्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस. अब आप अपनी कंट्री पे आ जाओ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर गवर्नमेंट हैज गिवन इक्वल राइट्स टू वुमेन and legal base is also given to those rights. Now in our country women can launch feminist movement or any woman can raise her voice if any injustice is done with her. Woman के साथ अगर कुछ भी injustice होता है तो she has given right, legal base is given, so she can raise her voice against that. And in our India is the largest democracy and in our country seats are reserved for SC and ST also. In this way we can say our government has promoted the dignity of these citizens also, not only of women but SC and ST की भी dignity को promote किया by giving them equal rights. So in this way we can say our government has promoted the dignity of the citizens by giving them equal rights. कितना easy है. पहले आप बिगनिंग करोगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रमोट द डिग्निटी ऑफ इट्स सिटीजंस बाय गिविंग देम इक्वल राइट्स. फिर आप अर्लियर स्ट्रक्चर पे चले जाओगे कि अर्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड वाज पैट्रियार्चल. फिर आप बताओगे कि पैट्रियार्चल सोसाइटीज थी, वुमेन को राइट्स नहीं मिले हुए थे, वुमेन स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड फिर आप बताओगे व्हेन वुमेन लॉन्च्ड वेरियस फेमिनिस्ट मूवमेंट्स एंड गॉट राइट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस. फिर आप अपनी कंट्री पे आ जाओगे, आफ्टर इंडिपेंडेंस अवर गवर्नमेंट हैज गिवन इक्वल राइट्स टू द वुमेन. तो हमारी गवर्नमेंट इक्वल राइट्स थी एंड लीगल बेस वाज आल्सो गिवन टू दोज राइट्स एंड वुमेन कैन रेज वॉइस इफ एनी इनजस्टिस इज डन विद हर. फिर आप बता दोगे कि इन अवर कंट्री सीट्स आर रिजर्व फॉर SC एंड ST आल्सो. इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. In this way we can say that our government has promoted the dignity of these citizens also. Now what do you mean by patriarchal society? Male dominating society. One mark question can be asked
What do you mean by patriarchal society? Male dominating society. तो हमारी तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी ही है. वुमेन एम्पावरमेंट एक्ट इज स्टिल पेंडिंग बिफोर पार्लियामेंट. वो भी पेंडिंग पड़ा पार्लियामेंट के पास, बिकॉज 10% सीट्स आर फिक्स फॉर वुमेन इन सेंट्रल गवर्नमेंट, 5 in state. So political status in our country, political status of women in our country is low. ये लिखना नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ. And next topic or last topic of this lesson is examination in democracy never gets over. तो कितना easy है ये topic. इसमें आपने बताना है कि yes, टेस्ट मनी वाला क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आपने कहना है it is the best form of government and expectations of people are more from the government. If government gives some facilities, people demand more and more. They never get satisfied. They always see their power holders critically because they want to make them best. Democratic countries में examination never gets over. क्यों नहीं खत्म होते? क्योंकि ये best form of government है and expectations of people are more from the government. जितना अच्छा होएगा उतनी expectations बढ़ जाएंगी. Expectations of people are more from the government. If government gives some facilities, then people demand more and more. If it clears one challenge, another is ready. If it clears one challenge, produces another. फिर आप बताओगे कि best form of government है, तो people can always see their power holders critically. क्यों critically देखते हैं? Because they want to make them best. So in this way we can say in democratic countries examination never gets over. So this is all about the chapter. इसके अलावा इस chapter में कुछ भी नहीं. हाँ, एक क्वेश्चन पूछ लेते होते हैं. Write the definition of good democracy. तो इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. जो आपने फीचर्स इंडिया के लिए पढ़े हैं यू कैन राइट सेम इन द गुड डेमोक्रेसी. कौन से फीचर्स आप लिख सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू नो इट वेल ना, गवर्नमेंट कैसी है ये. इट इज अ गवर्नमेंट इन विच पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ पीपल. अगर 1 मार्क क्वेश्चन आए तो कितने तरह की है? 2 टाइप्स की, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. इन इंडिया वी हैव indirect democracy. Indirect means representative democracy. In India we have indirect democracy, representative democracy, because we elect our representatives and on our behalf they take decisions. They work according to the wishes of the people because they are elected by them. तो इस वे से आप पहले तो गवर्नमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर उसके फीचर्स यू नो, ऑल द फीचर्स यू नो. कौन कौन से फीचर्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट अबाउट इलेक्शन, एक्सप्लेन इट. इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर फिक्स्ड टेन्योर. इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर 5 years. ठीक है, इस वे से आप लिखोगे. एंड थ्रू इलेक्शंस पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. Then elected representatives. People elect their representatives and those representatives work according to the wishes of the people because they have to face them in the next elections. Next, you will write right to criticism. In democratic countries, people have full right to criticize the functioning of the government by giving an article in the newspapers. तो इस वे से आप बता सकते हो. फिर आप लिख सकते हो इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जुडिशरी इज टोटली इंडिपेंडेंट. इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. And then it promote the dignity of its citizen. It promote the dignity of its citizens by giving them equal rights. It accommodates diversity also by giving equal rights to the people of diverse group. Next, it is accountable, responsive and legitimate government. So these are the features of democracy. अगर आपको पेपर में आ जाए, how can you say it is better than other form of government? Compare democracy with other form of government. Features को compare कर देना तो ये आपका अपने आप आंसर बन जाना है. Why democracy is better than its alternatives? ऐसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर में. Why democracy is better than its alternatives? फीचर्स को alternatives अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो अपने आप आंसर बन जाएगा. इधर आप कहोगे जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, साथ में आप कह दोगे इन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जुडिशरी इज नॉट इंडिपेंडेंट, डिपेंड्स अपॉन द विशेस ऑफ. वो कौन होते हैं? रूलर और डिक्टेटर. दे कैन चेंज द डिसीजंस ऑफ द जजेस. In democratic countries, people enjoy various civil liberties, whereas in other form of government, it depends upon the wish of dictator or monarch to give civil liberties to the people or not. वो दे चाहे ना दे, but in democratic countries, people enjoy various civil liberties. तो आप कंपेयर करोगे ना तो अपने आप ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जानी है. उसके बाद आपके ये बुक वाले क्वेश्चन है. फर्स्ट इज अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट.
अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो काउंटेबल को आप आंसरेबल करके लर्न करना और साथ में आरटीआई वाला एक्टर लिख देना। अगर आपको रेस्पॉन्सिव है तो अपने डिसीजंस को लेके रेस्पॉन्सिव है और रेस्पॉन्सिबल रहती है। ये नहीं है कि कुछ भी कल को गलत हो गया गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट दूसरे को ब्लेम कर दे। नो, गवर्नमेंट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। तो इस वे से आप कहोगे। नेक्स्ट इज थर्ड, आप बताओगे लेजिटिमेट। लेजिटिमेट में आप कहोगे रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे आर इलेक्टेड बाय पीपल थ्रू इलेक्शंस। रूलर्स मींस रिप्रेजेंटेटिव्स। नेक्स्ट, ये तो हो गया अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्लो एक्ट, शुड बी रिजेक्टेड? नो, इट इज द, हम खुद ही कह रहे हैं, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ओनली 1/4 वर्ल्ड इज नॉन डेमोक्रेटिक, रेस्ट ऑफ द countries of the world have become democratic because it is the best form of government. There is no better option than democracy. इसको कभी भी रिजेक्ट नहीं करना। फिर आपने बताना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, इसके लिए हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट इट कैन क्रिएट ओनली कंडीशन डिपेंड्स अपॉन सिटीजंस टू अवेल बेनिफिट्स और नॉट। मैं पढ़ा रही हूँ, आप नहीं पढ़ रहे, डिपेंड अपॉन यू। ठीक है ना, सेम है। गवर्नमेंट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन। स्कूल वाले आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं, आप नहीं पढ़ते, डिपेंड अपॉन यू। आप अवेल बेनिफिट्स और नॉट, आप नहीं उठाते बेनिफिट्स, डिपेंड अपॉन यू। सेम एज आप हमें थोड़ा कल को ब्लेम कर दोगे कि पढ़ाया नहीं था या ऐसे नहीं। सेम एज वी कांट ब्लेम गवर्नमेंट फॉर दिस कि गवर्नमेंट की गलती है। देयर आर अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। आपकी केयरलेसनेस रिस्पॉन्सिबल होगी, चीटिंग करके टेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपका, ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर कल को नंबर कम आए। इधर कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे? अगर हम कहें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज स्लो इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो गवर्नमेंट कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय अदर कंट्रीज। फिर हम कहेंगे कि ग्लोबल सिचुएशन ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, ग्लोबल सिचुएशन ऑफ द कंट्री। तो इस वे से आप ये पॉइंट्स बताओगे। फर्स्ट इज आप बताओगे ग्रोइंग पॉपुलेशन, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री, ग्लोबल सिचुएशन। तो अगला आपका टॉपिक आ जाना, नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। इसमें आप बताओगे कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज के सामने आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी भी आप कहोगे इनइक्वालिटीज हैं, हमारी ही कंट्री में देख लो, स्टिल पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन वेरियस बेसिस। तो देयर आर इनइक्वालिटी, ठीक है। इन डेमोक्रेसी देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, नहीं है, बट स्टिल इनइक्वालिटीज कैन बी सीन इन द सोसाइटी। आप ऐसे लिख सकते हो, इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, बट स्टिल वी कैन सी डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। इनइक्वालिटीज तो हैं। फिर हम कहेंगे पॉवर्टी भी है। आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अभी भी 26% लोग जो हैं स्टिल बिलो पॉवर्टी लाइन। बांग्लादेश में तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल बिलो पॉवर्टी लाइन। दिस इज बिकॉज वेल्थ ऑफ द कंट्री इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। रिच आर बिकमिंग रिचर, पुअर आर बिकमिंग पुअरर। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है गवर्नमेंट, दिस चैलेंज कैन बी अकोमोडेट, ये चैलेंज ओवरकम हो सकता है इफ गवर्नमेंट स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स वेल्थ इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है, इस वे से आप लिखोगे। नेक्स्ट इज, इसके बाद अकोमोडेट डाइवर्सिटी, आपको उसके कंडीशंस पता होनी चाहिए। हाउ डेमोक्रेसी अकोमोडेट डाइवर्सिटी, आपको कंडीशंस लर्न होनी चाहिए। मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी हैज टू वर्क टुगेदर, मेजोरिटी कैन नॉट डोमिनेट माइनॉरिटी, मेजोरिटी कैन नॉट डू वट एवर इट वांट, गवर्नमेंट शुड कैरी जनरल व्यूज। फिर आप बता सकते हो नो डाउट, एंड ऐसे कर दो, नो डाउट इट इज द रूल ऑफ majority, but here majority is not formed on the basis of caste, religion, language. Everyone can be the part of majority. बीजेपी में हर वर्ग के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, everyone can be the part of majority. तो इस वजह से डेमोक्रेसी। फिर आप इंडिया की एग्जांपल बता सकते हो, इंडिया में डाइवर्सिटी है, इंडिया में डाइवर्स ग्रुप के लोग रहते हैं, एंड अवर गवर्नमेंट हैज अकोमोडेटेड डाइवर्सिटी बाय गिविंग देम इक्वल राइट्स। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक जो है वो है प्रमोट डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। कितना इजी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स की रिस्पेक्ट को कैसे मेंटेन करती है, कैसे करती होगी, बाय गिविंग देम इक्वल राइट्स। फिर आप अर्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी पे चले जाओ कि पैट्रियार्चल था, वुमेन को इक्वल रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी इन द सोसाइटी। फिर आप आ जाओ कि वुमेन को काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी इन द वर्ल्ड, and then women got right after launching so many times feminist women got right equal rights as given to men. फिर आप अपनी कंट्री पे आ जाओ, आफ्टर इंडिपेंडेंस अवर गवर्नमेंट हैज गिवन इक्वल राइट्स टू द वुमेन। और फिर आप बताओ
कि हमारी गवर्नमेंट ने इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और यहाँ पे SC ST की सीट्स भी रिजर्व रखी हुई हैं। तो इन दिस वे गवर्नमेंट हैज आल्सो प्रमोटेड द डिग्निटी ऑफ दीज सिटीजंस आल्सो, वुमेन की ही नहीं SC ST की भी डिग्निटी को प्रमोट किया हुआ है। तो इस वे से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, प्रमोट द डिग्निटी। एंड लास्ट इज एग्जामिनेशन। कितना इजी आप अपने आप से बनाओ, एग्जामिनेशन कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि जिससे आस उम्मीद ज्यादा होती है उस, क्योंकि आप जैसे आप स्टूडेंट हो, आपसे स्कूल वालों की एक्सपेक्टेशंस आर मोर कि आप अच्छे नंबर लाओ, ठीक है ना, सेम एज गवर्नमेंट है, वो अच्छी गवर्नमेंट है, तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल आर मोर। और अगर गवर्नमेंट कुछ थोड़ा सा अच्छा करती है, लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, लोग और मांगते हैं। कभी सुना किसी को सेटिस्फाइड ऐसा कहते हुए कि बहुत अच्छा कर रही है गवर्नमेंट, कुछ भी वो फैसिलिटी दे दे, लोग कहेंगे हमें ये भी चाहिए। तो आपको कभी भी कोई टीचर ये तो नहीं कहता था बस अब मेरा और नहीं पढ़ना, यू आर डूइंग बेस्ट, नो, आपको और भी पढ़ने के लिए कहा जाता है, ये कहा जाता है इम्प्रूव मोर, क्योंकि आपको बेस्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए सेम एज विद गवर्नमेंट, एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल आर मोर फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दे मेक देयर पावर होल्डर्स बेस्ट, दे सी देम क्रिटिकली, इसीलिए वो उनको क्रिटिकली देखते हैं, ठीक है। आपको भी हम क्रिटिकली देखते हैं, बट आपको उस क्रिटिसिज्म को राइट वे से लेना चाहिए कि अगर मुझे क्रिटिसाइज किया ना तो मुझे इम्प्रूव करना है इस फील्ड में अपने आप को। सेम एज विद गवर्नमेंट, पीपल सी देयर पावर होल्डर्स क्रिटिकली बिकॉज दे वांट टू मेक देम बेस्ट। अब अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो सोचना वो टीचर आपको क्या बनाना चाहता है, बेस्ट, ठीक है ना। जो घर बैठे हैं, समझ आ रही है ना। तो आपने ये सब कुछ पढ़ना है, मैं अगर क्रिटिसाइज कर भी दूं तो ये कहना है कि मैं आपको बेस्ट बना रही हूँ, ठीक है, ओके।